اس تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو شہباز شریف صاحب آپ کو نظر نہیں آئیں گے. وہاں کے ابھی 2 مہینے کے اندر پی آئی اے کے 8 ایئر ہوسٹسیں بھاگ گئی ٹورانٹو اتر کے، وہ بین کرنے لگے ہیں. آپ ترجیح جو ہے نا وہ طاقتور کو دی جاتی ہے، عرب نان عرب کو نہیں دی جاتی. ایک نیوکلیر آرمڈ کنٹری ہے، عرب ورلڈ کو اکثر ہماری ضرورت پڑتی رہتی ہے. انہوں نے پیچھے کھڑا کر دیا، انہوں نے کہا بھائی آپ کا کیا ہے، ہم تو آپ کو تو جب مرضی پیسے دے کے بلا لیں. حالات ہمارے یہ ہیں کہ انفلوئنس ہم ویسٹ سے ہیں، ٹھیک ہے، فالو ہم نے ان کو کرنا ہے. منہ پہ ہم کہتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں. ہم ہر بندہ اتنے ڈیسپریٹ ہے، ہم اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ جس کو ہر دوسرے اسٹوڈنٹ کو پوچھو کدھر جانا ہے. اس پاکستان کی معیشت کو درست کریں، یہاں کے غریبوں پر رحم کریں، اس پاک سرزمین کی حفاظت کریں جس کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا کی طاقتیں حملہ آور ہم پر ہو رہی ہیں. ہمیں بتایا گیا ہے کہ اویئر ڈو یو، آپ کی ویلیو کتنی ہے. ہم نے تو غزہ کے اوپر کیا نہیں کیا، فلسطین کے لیے کیا نہیں کیا. ٹھیک ہے، ادھر بلاتے ہوئے نریندر مودی کو ساتھ کھڑا کرنا تھا محمد بن سلمان نے. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ نریندر مودی کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ they do not consider us. دوستو، پاکستان کے پردھان منتری شہباز شریف سعودی عرب کے ریاض شہر میں جو عرب اسلامک سمٹ ہو رہا تھا، جس میں کہ دنیا بھر کے مسلم نیتا یعنی کہ مسلم دیشوں کے پرتیندھی حصہ لے رہے تھے، اس میں گئے تھے. لیکن اس کی ایک فوٹو دیکھنے کے بعد پاکستانی بھڑک گئے، کیونکہ جو دنیا کی ایک لوتی اسلامک ایٹمک پاور ہے، پاکستانی تو خود کو ایسے کہتے ہیں، وہ آپ کو اس اسلامک دنیا کی یہ جو فوٹو لی گئی ہے، اس میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی. بہت مشکل سے آپ کو کہیں شہباز شریف کی منڈی نکلی ہوئی دکھائی دے سکتی. اب ریاض میں یہ سمٹ ہوئی تھی، اور یہ کوئی پہلی سمٹ نہیں ہے، یہ کوئی آخری سمٹ نہیں ہے جس میں کہ یہ سارے کے سارے اسلامک دیش اکٹھا ہوتے ہیں اور اس کے بعد اسرائیل کو گالیاں دیتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کرتا. آپ کو بتا دوں، جو اس سمٹ میں حصہ لینے والے اسلامک دیشوں کے پرتیندھی ہیں، یہ سب نرسنگہار کے ذمہ دار ہیں. چاہے سیریا کی بات ہو یا پھر یمن کی بات ہو یا ترکی کے جو ایکشن ہے کرد سمودائے کے لوگ ہیں ان کے اوپر، ان کی کوئی بھی بات نہیں کرتا. یہ جو یہاں اسرائیل کو گالیاں دینے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، یہ سب کے سب لاکھوں جانیں لے کے یہاں آئے ہیں. اور اس کے بعد یہ کس نتیجے پہ پہنچے، انہوں نے آج تک کوئی بھی نشکرش نہیں نکالا ہے. یہ سب آتے ہیں اکٹھا اور اس کے بعد لمبی لمبی ہانکتے ہیں اور پھر اپنے دیش میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ اسرائیل کے اگینسٹ کوئی بھی ایکشن لینے کی ان کی ہمت. تو آج ایک عرب اسلامک سمٹ ہوئی ہے سعودی عرب ریاض کے اندر، جس میں پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہے ان کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا، اور سارے عالم اسلام سے، مسلم دنیا سے اکٹھے ہوئے تھے لیڈرز. اور اصل مقصد جو یہ تھا کہ کس طرح کیا کیا جائے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی پہ یہ پریشر ڈالا جائے کہ جو غزہ کے اندر ایک جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس کو ایڈریس کیا جا سکے اور سیز فائر کرایا جا سکے اور جنگ بند کروائی جا سکے. جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی اپنی سپیچ دی، لیکن سب سے پہلے میں تبصرہ کرنا چاہتا ہوں اس تصویر کا. اس تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو شہباز شریف صاحب آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اس تصویر میں محمد بن سلمان جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں قطر کے امیر، ان کے رائٹ سائڈ پہ جارڈن کے کھڑے ہیں کنگ عبداللہ، پھر پریزیڈنٹ سیسی، بشار الاسد، اس کے ساتھ جو ہے فلسطین کے صدر ہیں، ساتھ آئی تھنک موراکو کے ہیں، آئی ڈونٹ نو نیکسٹ کون ہے، مالدیوز کے پریزیڈنٹ موضوع فرسٹ لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں. اینڈ دین پاکستان ایز اے اتنی بڑی نیوکلیر آرمڈ کنٹری، انہوں نے پیچھے کھلارتا ہے. ہم یہ بات کرتے ہیں نا جی، ایک نیوکلیر آرمڈ کنٹری ہے، عرب ورلڈ کو اکثر ہماری ضرورت پڑتی رہتی ہے. انہوں نے پیچھے کھڑا کر دیا، انہوں نے کہا بھائی آپ کا کیا ہے، ہم تو آپ کو تو جب مرضی پیسے دے کے بلا لیں. 4 ارب ڈالر، 5 ارب ڈالر، 10 ارب ڈالر کی آپ کو ضرورت رہتی ہے. کیا کریں ہم آپ کے ساتھ؟ کیوں ہمارے پرائم منسٹر کو پیچھے لائن میں کھڑا گیا؟ ہم تو بڑے چیمپئن ہیں فلسطین کے. اچھا فار ایگزامپل یہ عرب سمٹ بھی ہے، عرب اسلامک سمٹ ہے، مالدیوز کے پرائم منسٹر موضوع فرسٹ لائن پہ ہے، ٹرکش پریزیڈنٹ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، سینٹرل ایشین ممالک کھڑے ہوئے ہیں. میں اس کو بھی مان لوں کہ جی عرب ممالک کو پہلے ترجیح دی گئی ہے. ترجیح جو ہے نا وہ طاقتور کو دی جاتی ہے، عرب نان عرب کو نہیں دی جاتی. اب ہم پچھلے 1.5 سال سے جناب سر پہ ہم نے ہر چیز اٹھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب عربز کو تو نہیں اچھا لگتا پاکستان جب فلسطین کی بات کرتا ہے زیادہ. they don't like this. ان کو بالکل نہیں اچھا لگتا. وہ کہتے ہیں کیا یار ہر وقت آپ لگے رہتے ہیں فلسطین کرتے رہتے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ، ہم اس کو ریزالو کر لیں کہ آپ کریں، ہاں کانفرنس بلائیں ہیں فلسطین کے اوپر. کتنے لوگ جائیں گے آپ کی کانفرنس میں؟ اگر ہم سے یہ کہے کہ آپ اپنی کانفرنس بلائیں فلسطین کے اوپر، غزہ کے اوپر، ہم دیکھتے ہیں عرب ورلڈ میں سے کون آتا ہے اور کس لیول کی اٹینڈنس ہوگی. ہم بتاتے ہیں آپ کو کوئی اٹینڈنس نہیں ہوگی. کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ ہمارے کہے بغیر عرب ملک وہاں پہ جائے گا نہیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آخری پہلی لائن، میں جسٹ آپ کو اس کے میننگ ہوتے ہیں، سگنیفیکینس ہوتی ہے. ٹھیک ہے،
और मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस समझी जाती है कि इसका क्या मतलब है। हमें बताया गया है कि वेयर डू यू, आपकी वैल्यू कितनी है। हमने तो गजा के ऊपर क्या नहीं किया, फलस्तीन के लिए क्या नहीं किया, ठीक है। इधर बुलाते हुए नरेंद्र मोदी को साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने, साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि नरेंद्र मोदी की मार्केट वैल्यू क्या है। नरेंद्र मोदी की मार्केट वैल्यू ये है कि वो $4 ट्रिलियन की जीडीपी है। उनकी मार्केट वैल्यू ये है कि उसके पास कुछ 600-700 अरब डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा, जब मर्जी जैसे मर्जी वो अपनी ट्रेड करे। एक उसको पता है कि इंडिया जो है वो हमसे 55 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है, अच्छा भला तेल खरीदता है। उनकी वैल्यू उस लेंस से देखी जाती है। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਰੇ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, क्या तंग किया हुआ उन्होंने। सच्ची बात है, हमारे बातें पाकिस्तानी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि आपकी वैल्यू कितनी है। इसका मतलब यह है कि दे डू नॉट कंसिडर अस। दिस इज वेयर द वर्ड, वेयर द मुस्लिम वर्ड, आलम इस्लाम, जिसको हम कभी समझते थे जिसके हम चैंपियन हैं, वो हमें यहाँ खड़ा करते हैं साइड पे, बिकॉज उनको पता है कि हमारी इतनी रेलेवेंस एंड वैल्यू है। पाकिस्तानी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि आपकी वैल्यू कितनी है। टर्की की वैल्यू जहां पे है, कतर की वैल्यू है, जॉर्डन की वैल्यू है, इजिप्ट की वैल्यू है, सीरिया की वैल्यू है। चलो ये तो सारे इजराइल के नजदीक तरीन ममालिक हैं, नेबरिंग कंट्रीज है, चलो बनता है जी इनकी इंपॉर्टेंस से, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि शहबाज शरीफ जो है, इसका मतलब ये है कि दे डू नॉट कंसिडर अस। देयर वाज अ टाइम, इससे पहले आपको याद होगा कि एक दफा ट्रंप आए सऊदी अरब, और ट्रंप जब सऊदी अरब आए, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सऊदी अरब से ताल्लुकात नहीं अच्छे, सऊदी अरब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब एक ब्रदरली फ्रेंडली कंट्री है, हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, हमेशा हमारी सपोर्ट करता है, फाइनेंशियली भी, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, हर तरह सपोर्ट करता है। लेकिन सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि वेयर डू वी स्टैंड, हम स्टैंड कहां करते हैं। सो करना क्या है, करना यह है कि जो चल रहा है ऐसे ही चलो, सिर्फ और सिर्फ अरब्स जाओ और साथ में 1-2 और मुल्क इंडोनेशिया इधर उधर मिला लिया। दैट इज व्हाट इज देयर जॉब एंड रिक्वायरमेंट। उन्होंने ये किया, हमें इग्नोर कर दिया। अभी इधर भी बुलाया, अच्छा तकरीर साहब से ऊंची मारी होती है, नारे सार ना ऊंचे साढ़े फाड़ लो हम कर रहे होते हैं, ठीक है। वहां पे जो बातें हुई हैं, हमारे वजीर आज़म ने सबसे अच्छी तकरीर की होगी। हम अनवेवरिंग सपोर्ट देते हैं इजराइल की जो एग्रेशन है गजा, लेबनान, ईरान के ऊपर, वो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, अरब दुनिया क्या कर रही है, इस्लाम। अच्छा वो होता क्या है, मैं तो आज भी एक टीवी पे बैठा हुआ, तो मैंने तो सिंपल कह दिया, मैंने कहा ये जो इस्लाम, वो जो समिट हो रही है ना रियाद में, ये सिर्फ और सिर्फ 2-3 वजूहात की वजह से की है। पहली वजह कि अपनी अवाम को भी तो खुश रखना होता है मुसलमान दुनिया ने। देखो हम दूर के बैठ के गालियां तो निकाल रहे हैं ना उनको, हम बुरा भला तो कह रहे हैं ना। आज मैं आपको मजे की इंटरेस्टिंग, आज मैंने देखा कि टीवी के ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट आई, पाकिस्तानी एडवर्टाइजमेंट, क्या मुझे समझ नहीं लगी। एडवर्टाइजमेंट आई खिलाफत कोला, पहले से मुझे समझ नहीं लगी खिलाफत कोला। अब क्योंकि वो गजा के हवाले से जी सारे हम एक दूसरे कंडेम कर रहे हैं, हम सबको कंडेम कर रहे हैं, दैट्स फाइन, सबको कंडेम कर दिया जी, इजराइल ने ये की, इंसानी को खिलाफ वर्जी, वो सारी दुनिया कर रही है, हम भी करिए, दैट्स फाइन। 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि आगे आ जाए आपने कहा जी कि हमने कोको कोला नहीं पीनी, हमने फलां चीज नहीं पीनी, हमने ये नहीं पीनी, हमने वो नहीं पीनी, तो क्या करना है, हम अपना वो पाइन साढ़े को कोको कोला का मुतबादल नहीं बने 70 साल। आलम इस्लाम जो है ना, वो एक पेप्सी नहीं बना सके। हमें बुरी लगती हैं बातें भाई साहब, मैं तो कहता हूं हमें बुरी लगती है ये बात, हमें अच्छा नहीं लगता, हमारी इंसल्ट होती है इसमें कि आलम इस्लाम एक पेप्सी, कोको कोला, स्प्राइट नहीं बना सके, एक जूस असी नहीं बना सकते। आज हमें वो सारे का सारा वो करना पड़ता, बाइकआउट करना पड़ता, ठीक है। एंड खिलाफत कोला, अब खिलाफत कोला, खिलाफत क्या चीज है आपको पता है खिलाफत क्या है, लेकिन वो रजिस्टर्ड भी हो गया, सारा कुछ हो गया। अब लोगों को मजहबी बुनियादों पे कोको कोला का टेस्ट बेचने लगे हैं, और अल्लाह देखो अपना टेस्ट ही नहीं होना, एटलीस्ट आपका ऐसा टेस्ट तो हो ना कि मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने को दिल करे यार। मैं तो कोको कोला इसलिए पीता हूँ, मैं टेस्ट के लिए पीता हूँ, इसलिए तो नहीं पीता कि भाईजान वो अमरीकी है, बरतानवी है, इजरायली, मेरा इन चीजों से क्या लेना देना। मेरा तो इस चीज से उसका टेस्ट अच्छा है यार, मैं स्प्राइट इसलिए पीऊँ उसका टेस्ट अच्छा है।
वो कहते हैं कि आप वो पैड़ी 2 नंबर जो हम बनाते हैं ना वो भी है नहीं। अब इस समय इस्लामिक देशों में जो लोग हैं वो एक अलग ही अपनी धुन में है, जिसमें वो जो अमेरिकन और इजरायली प्रोडक्ट्स है उनका बायकॉट करते नजर आ रहे हैं। मजे की बात है ये उन्हीं चीजों का बायकॉट करते हैं जो इनकी कन्वीनियंस को थोड़ा सा कम करे, क्योंकि अगर सारी इजरायली चीजों को अगर ये बायकॉट करना शुरू कर दें तो फिर ये स्टोन एज में चले जाएंगे। ये फोन जो है, ये जो फेसबुक पे गालियां देते हैं, इंस्टाग्राम पे जो ये गालियां देते हैं, ये सब के सब यहूदियों के बनाए हुए प्लेटफॉर्म है, यहूदियों के इन्वेंशन है। अगर बात करें यहूदियों के इन्वेंशन की तो यहूदियों ने इन्वेंट कर करके दुनिया बदल रखी है। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें यहूदियों का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये जो सो कॉल्ड इस्लामिक देश हैं, ये सब 50 से ज्यादा देशों के नेता यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इन्होंने बस तस्वीर खिंचाई है, उसके बाद बड़े बड़े इन्होंने भाषण छोड़े हैं और फिर वापस चले गए। अब ये जो फोटो ली गई है इसमें आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बिल्कुल पीछे वाले लाइन में दिखेंगे और ये भी दूसरी साइड से मुंडी निकाल के देखने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा पुरानी फोटो में आपको दिखेगा 20-30 साल पुरानी फोटो कोई शादी की है तो उसमें जो फोटो खिंचवाने के लिए दूर दूर से लोग मुंडी निकालते हैं, वैसे ही इस समय शहबाज शरीफ मुंडी निकाले हुए हैं कि अगर थोड़ी सी फोटो आ जाए तो कम से कम बताने वाला हो जाऊं कि हाँ मैं सही जगह पहुंच गया था। अब जो लोग पाकिस्तान के हैं वो काफी नाराज है। उनका कहना है कि हम एक तरफ फिलिस्तीन के चैंपियन बने फिरते हैं और दूसरी तरफ जो इस्लामिक देशों की बड़ी बड़ी फौजी ताकतें हैं, उस सब के बावजूद हम यहाँ पे मुस्लिम देशों की अरब में बैठे, हम यहाँ पे सिर्फ बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में भी जो कि अपने आप को बहुत तुर्रम खा समझने वाली एटॉमिक पावर है उसे पीछे वाली लाइन में जगह दी गई है, वो भी उसकी हाइट के हिसाब से जस्टिस नहीं करती। अगर वो 4 कदम राइट या लेफ्ट होता तो कम से कम उसके ढंग से फोटो आ जाती। ऐसे में साफ है कि अरब देश में पाकिस्तान की इज्जत खत्म हो रही है और पाकिस्तान को कुछ भी नहीं समझा जा रहा। बात करें अगर पाकिस्तान की सिचुएशन की तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली बिल्कुल डाउनवर्ड स्पाइरल में जा रहा है और इसीलिए पाकिस्तान की इस समय इज्जत खत्म हो चुकी। अब इसके ऊपर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ये भी बोले कि अगर शहबाज शरीफ की जगह प्रधानमंत्री मोदी को भी बुलाया जाता तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस उन्हें अपने बाजू में खड़ा कर दे, जबकि शहबाज शरीफ जो है ये एटमी पावर मुंडी निकाल के देखती हुई दिखाई दे रही है। खैर भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी ऐसा करते रहते हैं। ऐसे में जो रियाद में ये समिट हुई है इससे अब कुछ भी फिलहाल कुछ भी कॉन्क्रीट इसमें जो डिसीजन है वो सामने नहीं निकल के आया है। लेकिन आज से 1 साल पहले ये मीटिंग होना शुरू हुई थी और पहले इस्लामिक देशों ने या कहीं की इस्लामिक देशों को किसी ने ये एडवाइस दी थी कि आप जो गाजा के पैलेस्टीनियंस हैं उन्हें आप अपने अपने देशों में थोड़े थोड़े लोगों को शरण दे दो। जितने ये 56-57 इस्लामिक देश है उनमें से एक ने भी ये नहीं कहा कि मैं एक भी पैलेस्टीनियन को अपने देश में लूंगा। अगर ये फाइटिंग एज के मेल्स को नहीं ले सकते तो कम से कम जो फीमेल्स है या जिनके छोटे बच्चे हैं, ये जो 2 कैटेगरीज है, इन कैटेगरी के जो पैलेस्टीनियन है उनको तो लिया जा सकता है। लेकिन जब सुरंग में छिपे आतंकवादी को मारने के लिए इजराइल बम गिराता है और उसमें सुरंग के ऊपर कहीं कोई बच्चा मर जाता है तो फिर ये सारे के सारे इस्लामिक देश रोने लग जाते हैं। लेकिन कोई इनसे ये पूछे कि इस बच्चे को तुम अपने देश में शरण दे सकते थे 1 साल के लिए जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं हो जाती, वो ये काम नहीं करेंगे। इनको मरने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद जब मरेंगे तो फिर ट्वीट पे ट्वीट और भाषणबाजी पे भाषणबाजी करके बंद हो जाएंगे। और यही इस समय इस्लामिक दुनिया में लगा हुआ है। कुल मिलाकर इसका कुछ रिजल्ट सामने दिखाई नहीं दे रहा और अब डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं तो उसके बाद गाजा का बाजा बनने वाला है और इस्लामिक देश मुझे लगता है कि फिर चुप हो जाएंगे, क्योंकि ट्रंप जो है वो जो बाइडन नहीं है, वो अच्छे तरीके से इन चीजों से डील करना जानते हैं। पाकिस्तान की बेइज्जती हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तानी जो डिल्यूजन में रहते हैं आज भी ये लोग इतने डिल्यूजनल हैं, ये आपको देखे हंसी